Good morning, Vikrant. Yes, good morning, Vikrant. Yes, Vikrant, good morning. Good morning. Good morning, class. Good morning, class. Anshu Chaudhary, good morning, beta. Divya Sharma. Yes, Divya Sharma. Good morning. Good morning, Good class. morning. Good morning. Just wait for 3 minutes more. Let everybody join. Wait for 2 minutes more. I'm going to start on 10:25. Okay, class. So yesterday I told you about the word LPG. L stands for which word? Yes. Anupam Chauhan, tell me LPG stands for? Anupam, unmute yourself. Yesterday I didn't mark anyone's attendance. Today you also want the same thing? अनुपम बताओ एलपीजी का मतलब क्या होता है? अनुपम, what is the meaning of LPG? Anshu, tell me. Liquefied petroleum gas. Oh my God. I am asking in IIB. What is LPG? Yesterday I told you about. Ma'am, yesterday मैं present नहीं थी. Okay. Yes, Sonam. Yes, ma'am. Ma'am, liberalization, privatization, and globalization. Good. Yes. So LPG stands for liberalization, privatization, and globalization. ठीक है. Liberalization का मैंने आपको बताया था कि to be lenient on the part of our policies, right? And privatization was taking converting private sector, public sectors into private sector, encouraging more and more private sector for the economic development, right? So globalization means
it means to integrate the economy of one country with the global economy, right? कि हम पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को एक जैसा ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे देश की इकोनॉमी है डेट विल जो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी है डेट विल इंटीग्रेट विद अवर इकोनॉमी, ठीक है। हमारी इकोनॉमी उन्हीं के साथ इंटीग्रेट हो, अच्छी बने, उसकी प्रोग्रेस हो। ग्लोबलाइजेशन का बेसिकली मतलब होता है टू बी अ ग्लोबल। ग्लोबल मतलब that word comes from the word globe. Globe is what? Globe shows all the countries ना। globe पे आप सारी countries देखते हो कि कैसे कहाँ पे कौन सी located है, which is near to the ocean, which is an island। तो ये सब चीजें हमें globe से पता लगती है। तो globalization का मतलब यही होता है पूरे वर्ल्ड को एक मार्केट की तरह से ट्रीट करना। अगर हमें कहीं से भी कोई प्रोडक्ट चाहिए तो वी कैन रिक्रूट इट फ्रॉम एनी कंट्री, राइट। Globalization as a term has a very complex phenomena. The main aim is to transfer the world toward independence and integration of the world as a whole by setting various strategic policies. Globalization is attempting to create a borderless world wherein the need of one country can be driven from across the globe and turning into a one large economy. ठीक है, अगर किसी कंट्री को हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अगर कोई कंट्री हमारे से कुछ चाहती है तो हम उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करें। एंड अगर हमारे यहाँ किसी चीज का प्रोडक्शन कम है या हमारे यहाँ कोई चीज कम क्वांटिटी में मिलती है या कहीं किसी कंट्री की कोई स्पेशलाइज्ड है कोई प्रोडक्ट, तो उसको हम अपने यहाँ बनाएं। दैट इज ऑल व्हाट कॉल्ड द ग्लोबलाइजेशन। एनकरेज करना चीजों को, ठीक है। आउटसोर्सिंग एज आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन। Can anybody tell me what is the meaning of outsourcing? Yes, outsourcing का मतलब क्या होता है? Yes, class. What is the meaning of outsourcing? क्या मीनिंग होता है आउटसोर्सिंग का? Yes. Ma'am, getting work from others. Yes, very good. Getting work from others. Outsource का मतलब होता है कि जैसे आजकल कंपनीज में भी एक कल्चर है, इन प्राइवेट कंपनीज देयर इज अ कल्चर, देयर आर टू टाइप ऑफ एम्प्लॉयज इन द कंपनी। वन इज who is on a payroll and second one is outsource। मीन्स हम क्या करते हैं कि सपोज हमारे यहाँ पे ना कोई स्पेशलाइज फील्ड है और उसके लिए बट हमारे पास इतना ज्यादा फाइनेंशियल वो नहीं है, फंड्स नहीं है उसको देने के लिए, सैलरी नहीं है इतनी, तो हम क्या करते हैं उसको आउटसोर्स कर लेते हैं कि ठीक है आप हमारे यहाँ पर जब आओगे जब हमें आपकी जरूरत होगी, ठीक है। हम डेज फिक्स कर लेते हैं कि वीक में आप 1 डे आओगे हमारे पास, ठीक है, तो हम उसी के हिसाब से उसको पे करते हैं। तो आउटसोर्स का मतलब होता है, या इसका एक सेंस ये भी होता है कि किसी की सर्विसेज बहुत हाई फाई है, बहुत ज्यादा रेटेड सर्विसेज हैं और हमें वो सर्विसेज अवेल करनी है बट ऑन अ रेगुलर बेसिस वी कैन नॉट अफोर्ड दैट सर्विसेज, तो हम उसको क्या करते हैं अपनी कंपनी में थोड़े टाइम के लिए रखते हैं, या हम कंपनी में उसको परमानेंट पोजीशन नहीं देते, हम कंपनी में उसको एक टेम्परेरी पोजीशन देते हैं और एक कंसोलिडेटेड सैलरी देते हैं। दैट इज आल्सो नोन एज द आउटसोर्सिंग, ठीक है। कंपनीज उसको ऐसे यूज करती हैं दोनों सेंस में, ठीक है। किसी की सर्विसेज बहुत है हाई है और हम उसकी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, वी कैन नॉट पे इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, सो वी हायर इट ऑन अ नंबर ऑफ डेज, according to that we pay him। Okay, second is that we cannot afford the salary of a person who is high, तो हम क्या करते हैं उसको कंपनी के परमानेंट पेरोल पे नहीं रखते, उसको फैसिलिटीज कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है बट हम उसको परमानेंट नहीं करते हैं, उसको आउटसोर्स रखते हैं। इन आउटसोर्स वी नीड नॉट टू पे अ पेरोल व्हिच इज डिफाइंड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, उसको पेरोल से कम पे किया जाता है और उसको परमानेंट नहीं रखा जाता, तो दैट पर्सन इज आल्सो नोन एज आउटसोर्स। मीनिंग दोनों की सेम ही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस इज आउटसोर्सिंग। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या हुई ग्लोबलाइजेशन से कि आउटसोर्सिंग स्टार्ट हो गई, मींस पीपल स्टार्टेड शेयरिंग देयर सर्विसेज, लोगों ने अपनी सर्विसेज को शेयर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जैसे कोई लॉयर है, ठीक है, लॉयर की सर्विसेज बहुत ज्यादा कॉस्टली है,
तो हमें उसकी जरूरत है। तो ऐसा करते हैं, हमारे जो कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनमें हाई कंसर्न की जरूरत है, हम उन केसेस के लिए उस स्पेशल लॉयर को हायर कर देते हैं, और जो बाकी हमारे नॉर्मल केसेस हैं उसमें हमारा नॉर्मल लॉयर काम करेगा। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड द आउटसोर्सिंग। ड्यूरिंग द आउटसोर्सिंग मॉडल, अ कंपनी ऑफ अ कंट्री हैज hires professional from some other country to get their work done, which was earlier conducted by their internal resource of their own country. इसमें क्या होता है कि हम सेम कंट्री से भी हायर कर सकते हैं, हम दूसरी कंट्री से भी हायर कर सकते हैं। इन द सेंस लाइक कोई भी हमने मैकेनिकल कोई भी हमने मशीनरी ली एंड वो इंटरनेशनल ब्रांड की है, तो उसके सर्विस प्रोवाइडर भी कौन है, इंटरनेशनल है, उसकी हमें जो भी मेंटेनेंस प्रोसेस कराना है तो वो भी सारा दूसरी कंट्री से आते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनके साथ एक बॉन्ड साइन कर लेते हैं, उनको आउटसोर्स कर लेते हैं कि ठीक है हमारी मशीन की मेंटेनेंस साल में 2 बार होगी एंड यू पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेट। तो हमने क्या करा, आउटसोर्सिंग करी, दूसरी कंट्री से बुलाया, और हमारे यहाँ के लोग भी दूसरी कंट्री में जाके जॉब कर रहे हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ आउटसोर्सिंग इज दैट द वर्क कैन बी डन एट अ lower rate and from the superior source available anywhere in the market. It means कि आपका जो काम है वो कम रेट में भी हो जाता है, एंड सेकेंडली यू कैन हैव इट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। फाइन। Services like legal services, marketing, technical support. As information technology has grown in the past few years, the outsourcing of contractual work from one country to another has grown tremendously. तो outsourcing अब हमारी बढ़ गई, और during pandemic time it also raised very rapidly. कि अब क्या हुआ, आपने देखा pandemic में क्या हुआ, डॉक्टर्स कैसे कंसल्ट करते थे, बताया कोई मुझे कि pandemic में डॉक्टर्स ने कैसे कंसल्ट करी आउटसोर्सिंग के थ्रू? Yes. Can anybody tell me? मैम ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके मैम। हाँ, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके टेक्नोलॉजी का यूज हुआ उसमें, ठीक है, जूम मीटिंग में या वीडियो कॉलिंग के थ्रू डॉक्टर ने देखा पेशेंट्स को और ही डायग्नोस्ड एंड प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। तो कि आउटसोर्सिंग का मतलब ये भी होता है कि अगर कोई भी मेडिकल सर्विसेज है, ठीक है, हमें अगर कोई भी हेल्थ इशू है, लाइक एनीवन इज सफरिंग फ्रॉम अ वेरी सीवियर डिजीज, तो इन दैट केस ही नीड नॉट टू मूव टू अमेरिका, ही कैन हैव अ कंसल्ट ऑन अ जूम मीटिंग और ऑन अ गूगल मीट। उसको वहां पे वो उस डॉक्टर के साथ कन्वर्सेशन कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम बता सकता है और अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप कर सकता है। तो दिस इज ऑल व्हाट द टेक्नोलॉजी, ये क्या है, आउटसोर्सिंग का सारा यूज है, ठीक है। कि हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन बढ़ने से हमारे यहाँ पे पहले ये चीजें हमारी कंट्री में अलाउड नहीं थी, बट नाउ वी हैड मेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन को और ज्यादा स्पीड दे दी है। Right. Various business process outsourcing companies or call center which have their model of a voice-based business processes has developed in India. Activities like accounting and bookkeeping services, clinical advice, banking services, or even education are best outsourced from developed countries to India. अब जितनी भी एजुकेशनल सर्विसेज हैं, ठीक है, जैसे पहले यहाँ से बच्चे बहुत ही कम ऐसे होते थे जो दूसरी कंट्री में जाके अपनी स्टडीज करते थे, बट नाउ व्हाट वी ऑल आर डूइंग इज वी आर फोकसिंग, ठीक है, हम सब क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। जो बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा बाहर की यूनिवर्सिटीज में खुद को एनरोल कर रहे हैं, वहां जा जाके पढ़ाई कर रहे हैं, गेटिंग डिग्रीज फ्रॉम देयर एंड वर्किंग हियर इन इंडिया। सम आपने कुछ देखा भी होगा, आपके कुछ रिश्तेदार होंगे या नोन होंगे, उनमें क्या है, आजकल लोग जो है एमबीबीएस वगैरह चाइना से कर लेते हैं या अमेरिका से करके आ जाते हैं, जहाँ पे एमबीबीएस की पढ़ाई सस्ती है, इजीली यू कैन टेक एडमिशंस, ठीक है, वहां पे जाके एडमिशन ले लिया, पढ़ाई कर लिया, एंड दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ओवर हियर इन इंडिया। What are the benefits of globalization? क्या क्या benefits होते हैं globalization के? The most important advantage of outsourcing is that big multinational corporate or even small enterprises can avail good services at a cheaper rate as compared to their country's standard. क्या होता है कि बिग मल्टीनेशनल कंपनीज को और स्मॉल एंटरप्राइजेस को जो है क्या करती हैं, हमें दूसरी कंपनी से ज्यादा सस्ते प्रोडक्ट्स देते हैं दूसरी कंट्री के। हो सकता है कि जैसे अभी क्या है, हमारी कंट्री में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट और बाकी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट इतना नहीं है जितना चाइना के अंदर है। तो प्रीवियसली बिफोर 2 or 3 years, 1 या 2 साल पहले और अभी भी
वी वर यूजिंग द चाइना प्रोडक्ट्स मोर, ठीक है। अगर स्लीपर्स भी आ रहे हैं तो वो भी चाइना के आ रहे हैं, एक बच्चों का हैंकी आ रहा है वो भी चाइना का आ रहा है, हमारे पास टॉयज भी चाइना के आ रहे हैं। तो क्या हुआ कि हमें वो चीजें बहुत चीपर रेट में मिल रही थी। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी नहीं है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। तो अब उस केस में क्या हुआ कि हमें भी ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जो सबकी नीड को सेटिस्फाई कर दे और प्राइस को भी सेटिस्फाइड हो सब लोग। तो इन दैट केस वी ऑप्टेड द प्रोडक्ट्स ऑफ चाइना, क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स सस्ते थे। तो वो चाइना ने हमारी मार्केट को कैप्चर कर लिया। जब चाइना ने हमारी मार्केट को कैप्चर करा, लोग उसके प्रोडक्ट्स यूज करने लग गए, तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, ठीक है। तो क्या होता है ग्लोबलाइजेशन में, एक ये भी होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट किसी कंट्री में available in a cheap amount, we can have it and use it in our own country. The skill set in India is considered most dynamic and effective across the world. Indian professionals are best at their work. The low wage rate and specialized personnel with high skills have made the India most favorable destination for global outsourcing in the later state of reformation. इसमें क्या हुआ कि आपको पता है कि इंडिया के जितने भी एम्प्लॉयज हैं दे आर बेस्ट कंसिडर्ड। आप बताओ इंडिया के एम्प्लॉयज को बेस्ट क्यों कंसिडर करा जाता है दूसरी कंट्रीज में? ऐसा क्यों है कि जो इंडिया के एम्प्लॉयज हैं उनको ये समझा जाता है कि दे आर बेस्ट? अक्रॉस द वर्ल्ड हमारे पास एचआर है, अक्रॉस द वर्ल्ड हम सब कुछ कर सकते हैं, बट व्हाई इंडियंस आर बेस्ट? यस अंशु बताओ, यू आर म्यूटिंग अनम्यूटिंग। मैम लो वेजेस होते हैं मैम यहाँ पर मैम, और काम मैम पूरा दिल से और दिमाग से करते हैं। अच्छा, और हम चीपर रेट पे अवेलेबल होते हैं। चीपर रेट पे, ओके। एंड एनीवन एल्स? इंडिया मैम बताओ बेटा। यस यस सुनिधि आर यू वेल? यस मैम। ओके, टेक केयर बेटा। सो इंडिया के एम्प्लॉयज के बारे में ये दो चीजें बोली जाती हैं। फर्स्ट इज दैट दे आर वेरी स्किल्ड पर्संस, ठीक है, वो बहुत स्किल्ड माने जाते हैं। सेकंड, दे आर अवेलेबल ऑन अ वेरी लो सैलरी, ठीक है। हम तो यहाँ से अमेरिका सोच के जाते हैं हमें बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है, बट अमेरिका के अकॉर्डिंग वो पैकेज इतना ज्यादा नहीं होता। थर्ड, वी ऑल आर वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स अवर वर्क। ये इंडिया का एक कल्चर है कि हम लोग बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रहते हैं अपने काम के लिए। तो इसलिए इंडिया लेबर जो है, इंडिया एचआर है, इंडिया का ह्यूमन रिसोर्स जो है वो सारा बेस्ट इसीलिए माना जाता है क्योंकि वो बहुत कम अमाउंट में मिलता है, स्किल्ड होती हैं, एंड थर्ड इज बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं। इंडिया इज अ नेशन ऑफ स्मॉल बिजनेस। For small neighborhood kirana stores to cottage industries and other local businesses, small enterprises play a crucial role in an Indian economy. According to reports by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, small business contribute to 30% of the overall GDP of the nation and employ more than 100 million people. तो हमारे यहाँ पे क्या है, हमारी इकोनॉमी किस टाइप के इंडस्ट्रीज से बनी है? हमारे यहाँ की इकोनॉमी 3 टाइप की इंडस्ट्रीज से बनी है, ठीक है। स्मॉल इंटरप्राइजेस, माइक्रो इंटरप्राइजेस, स्मॉल इंटरप्राइजेस एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है। अब स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कौन सी होती है, किस बेस पे डिपेंड होती है, क्या इनका क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है? आपने बहुत कुछ सुना होगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिनकी कैपिटल में 1 करोड़ से कम होती है। अच्छा, और क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या एग्जांपल है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के? यस, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? यस बताओ। मैम इनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है मैम मोर देन 25 लाख और मैम और लेस देन 5 करोड़ रुपीस। यस अंशु आप बताओ। मैम इसमें एक ही बार इन्वेस्ट करना पड़ता है।
बेटा कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होता कि उसमें आपको एक ही बार इन्वेस्ट करना पड़े। इन्वेस्ट तो आपको बार बार करना ही पड़ेगा, ठीक है। इन्वेस्ट तो हर बिजनेस जो है ना, रिटर्न अगर आप उससे चाहते हो तो यू नीड टू इन्वेस्ट मोर, ठीक है। आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती ही है रेगुलर बेसिस पे। तो ये क्लासिफिकेशन माइक्रो इंडस्ट्री, स्मॉल एंटरप्राइजेस और मीडियम एंटरप्राइजेस का, ये बेसिकली किस वजह से आया आपका, उनकी इन्वेस्टमेंट के बेस पे आया कि कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस कंपनी के अंदर, ठीक है। तो उसी की वजह से ये हमारा क्लासिफिकेशन आया। पहला है एंटरप्राइजेस एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स। माइक्रो एंटरप्राइजेस कितना इन्वेस्ट करती है किसी की भी मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोसेसिंग में, प्रोडक्शन में और प्रिजर्वेशन में, मतलब ओवरऑल जो भी उनका प्रोसेस होता है उसमें 25 लाख से ज्यादा खर्च नहीं करती। माइक्रो एंटरप्राइजेस नेवर स्पेंड मोर देन 25 lakhs and small enterprises not exceeds its ₹5 crore. Minimum limit is 25 lakhs and maximum limit is 5 crore. For medium enterprises, investment is minimum investment is 5 crore and the maximum investment is 10 crores, ठीक है। एंटरप्राइजेस एंगेज्ड इन सर्विसेज, ठीक है। पहली तो जो है आपके प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व है, सेकंड जो है हमारी सर्विसेज में इन्वॉल्व है। इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड्स, एनी एग्जांपल ऑफ सर्विसेज फ्रॉम यू? यस, बताओ सर्विसेज क्या होती हैं? यस, व्हाट आर सर्विसेज? एग्जाम्पल दो सर्विसेज का, अभी तो डिस्कस कराए। यस, अभी तो एग्जाम्पल डिस्कस करा है सर्विसेज का, बताओ। मैम जैसे लॉयर अपने क्लाइंट को सर्विस देता है, डॉक्टर के पेशेंट को। यस यस, कस्टमर केयर पे बोल देते हैं हम, टीवी खराब हो गया, मैकेनिक को बुला रहे हैं, उसकी जो हमारे हाथ का अपना परफेक्शन होता है, जो हमारे माइंड का अपना परफेक्शन होता है, जो चीजें दिखती नहीं है जब तक हम नहीं करते, दैट इज कॉल्ड सर्विसेज, ठीक है। तो सर्विसेज के बेस पे कैसे होती है? इन्वेस्टमेंट 10 लाख से ज्यादा नहीं होता माइक्रो एंटरप्राइजेस में। स्मॉल एंटरप्राइज में मिनिमम 10 लाख होता है एंड मैक्सिमम 2 करोड़ होता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट मीडियम एंटरप्राइजेस में इज ₹2 crore and does not exceed ₹5 crore. Excuse me. Here investment refers to investment in equipment, machinery and the plant does not include the cost of building or land. Next, a role of small medium enterprises in large Indian economy. क्या रोल है हमारा SMEs का हमारी इसमें डेवलपमेंट में, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज का? फर्स्ट इज it is no exaggeration that small SMEs form the backbone of the Indian economy. आपने खुद नहीं देखा कि हमारे घर के आसपास या हमारे घर से, या हमने बहुत लोगों को देखा होगा जो अपने घर से काम करते हैं, ठीक है। घर में छोटी छोटी चीजें बनाते हैं और उनको बेचते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा कैंडल मेकिंग वर्क होता है, कैंडल मेकिंग वर्क हो गया। उसके साथ साथ जो दुपट्टे यूज करे जाते हैं मार्केट में, उनके अंदर जो आपके सितारे लगते हैं, उन सितारों का वर्क होता है, ठीक है। वो कौन बनाते हैं? घर, वो कौन लगाता है? जो घर में लड़कियां बैठी होती हैं, फ्री होती है, वो वहां से बल्क में लेकर आती हैं फैक्ट्रीज से और उनपे वो सारा वर्क करती हैं, ठीक है। जितनी भी आपकी गार्लैंड मेकिंग होती है, फूलों की माला बनाने का वर्क हो गया, आपका धूप बत्ती जो पूजा में यूज होती है, उसके भी बहुत सारे स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। आपकी क्रैकर्स की स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है, राखी की स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है। ये सब क्या है? हमारे SMEs में आते हैं, ठीक है। ये सब क्या करते हैं? हमारे घर में जो उनका खुद का परफेक्शन होता है, उसी परफेक्शन के थ्रू उनको रोजगार देती है, उनको एम्प्लॉयमेंट देती है। जैसे किसी की मदर है, घर में टिफिन सर्व करने का काम होता है किसी का, ठीक है। टिफिन सर्व करने में क्या होता है? उसकी खुद की एक्सपर्टाइज है, इसलिए उसने सोचा कि चलो मैं खाना बना के और यही लोगों को सर्व करती हूँ, मेरी इनकम का यही सोर्स है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द स्मॉल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। टिफिन बनाने का हो गया, पिकल बनाने का हो गया, पापड़ बनाने का हो गया, ये सब हमारे SMEs में आते हैं।
SMEs are one of the key drivers on the Indian growth story. The SME sector, इस चीज में क्या होता है, गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन नहीं पड़ता, इसमें कुछ इतनी रेगुलेशन नहीं होती, गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे या उन्हें गवर्नमेंट से इतनी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। वो सीधे अपने घर में अपने रिसोर्सेज देखे उनके पास कितने हैं, उन्हीं रिसोर्सेज को उन्होंने कलेक्ट करा और उन कलेक्ट रिसोर्सेज से उन्होंने क्या करा, सर्व करना स्टार्ट कर दिया। SMEs are one of the key drivers in the Indian growth system. The SME sector comprises industries and business across the various articles like manufacturing, food processing, chemical, packaging, service industry, IT and more. SMEs can be proprietary firms, partnerships. SMEs कैसे भी हो सकती है, आपकी प्रोप्राइटरी फॉर्म्स हो सकती हैं, पार्टनरशिप ने आपने किसी के साथ खोली है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हो सकती है, आपका कोई खुद का बनाया हुआ एक ग्रुप हो सकता है, कोई भी विलेज में ग्रुप हो सकता है, कॉटेज इंडस्ट्री हो सकती है और मैनी मोर, किसी भी टाइप की इंडस्ट्री हो सकती है। Here are a few members that illustrate the significance of SMEs. Number of SMEs in India 42.5 million units, जिसके अंदर रजिस्टर्ड भी है और अनरजिस्टर्ड भी है। बेसिकली रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड आर दोस्त। कई बार क्या होता है, किसी को कुछ क्रेडिट बेनिफिट्स चाहिए होते हैं या लोन बेनिफिट्स चाहिए होते हैं, तो हो सकता है उसके लिए रिजर्वेशन की जरूरत होती है, ठीक है, या कुछ SMEs ऐसी है जो घर में चल रही है बट हमें नहीं पता। लाइक इफ आई एम परफेक्ट इन मेकिंग पिकल, तो आई एम डूइंग माई ओन पैकिंग एंड सर्विंग इट टू माई नोन मेंबर्स, ठीक है, और उनके भी नोन मेंबर्स को सर्व कर रही हूँ, तो मैं कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं केवल वर्ड ऑफ माउथ बेस पे ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अपनी सेटअप करके और उसी के बेस पे काम कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है SMEs account for 95% of the total industrial unit in the country. SMEs के अंदर कितनी इंडस्ट्रियल यूनिट आती है, हमारी 95% इंडस्ट्रियल यूनिट आती है एंड प्रोड्यूस देन मोर देन 6000 प्रोडक्ट्स, और हमारी कंट्री के अंदर 6000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे किसी ने क्या करा, फैब्रिक ले लिया बाहर से मार्केट से, उसके कुर्ते स्टिच करके बेचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आप NIT की मार्केट जाओ, आप ओल्ड की मार्केट जाओ, कुछ ऐसे होकर्स होते हैं जो खड़े रहते हैं साइड में, ठीक है, वो कौन होते हैं, उनके घर में कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों का मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो आके यहाँ पे उन्हें बेचते हैं। SMEs contribute to the industrialization of rural and background economic areas. SMEs बेस्ट कहाँ पे है, SMEs बेस्ट वहां पर है जहां पर आपकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है, तो वो क्या करते हैं, घर में ही चीजों को बनाते हैं, अपने हाथ का ही यूज करते हैं। जैसे आर्टिस्टिक वर्क होता है हमारा, छोटा छोटा आर्टिस्टिक वर्क है, फ्लावर पॉट मेकिंग है, ठीक है, पॉटर हो गए, तो ये सब क्या करते हैं। और बैकवर्ड इकोनॉमिक एरिया जहां पर लाइट नहीं है, गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर पाती है, तो वहां से वो प्रोडक्ट बनाते हैं एंड दे सेल इट टू द बिग होलसेलर्स और रिटेलर्स, और फिर जितना भी आप देखो आर्टिस्टिक वर्क होता है, करवा चौथ पे आपको सारा आर्टिस्टिक वर्क मिलेगा, छन्नी मिलती है, प्लेट सजी हुई मिलती है, वेडिंग टाइम में आपको ऐसे ही मिलता है, दिवाली आएगी आपको बहुत सारे डेकोरेटिव मटेरियल मिलेंगे, तो वो सब किसके थ्रू आते हैं, वो सारे SMEs के थ्रू आते हैं। SMEs employ 106 million people, that are nearly 40% of the total workforce. हमारी कंट्री की जो टोटल वर्कफोर्स है, SMEs उनको 40% कवर करती है, मतलब 40% हमारा इससे ज्यादा है। SMEs are the biggest employers in the country next to the agriculture sector. Agriculture sector is the first who is providing services to the कंट्री, ठीक है, और SMEs हमारे क्या होते हैं, सेकंड है कि जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है SMEs कंट्रीब्यूट टू 30% ऑफ द नेशंस GDP। कितना GDP में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 30%, एंड 24.63 फ्रॉम द सर्विस सेक्टर एंड 6.11 फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैंने अभी आपको ऊपर भी क्लासिफिकेशन अलग अलग बताया था सर्विसेज और प्रोडक्ट का, कि ये हमारा प्रोडक्ट्स का है और ये हमारा सर्विसेज का है। नेक्स्ट है SMEs contribute to 45% of the total manufacturing output of the country. कितना आउटपुट, 45% देती है टोटल मैन्युफैक्चरिंग एंड 40% एक्सपोर्ट्स देती है। SMEs have maintained an average growth rate of 10% over the past few years. SMEs ने कितनी ग्रोथ करी है, 10% तक। Various challenges faced by SMEs in India.
क्या क्या चैलेंजेस है जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फेस कर रही है इंडिया में? डिस्पाइट द लार्ज वॉल्यूम द एसएमई सेक्टर इंडिया हैज नॉट बीन significant growth. There are several reasons behind the reluctance to growth. One, small scale industry do not want to expand their market due to taxation and other regulatory hurdles. अब small scale industries में आप भी जानते हो इलेक्ट्रिसिटी के भी बेनिफिट हैं, हमारे टैक्स के भी बेनिफिट है, तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या है, बिग की तरफ नहीं मूव करती, बिकॉज दे फील लाइक कि अगर हम ज्यादा पेपर वर्क में जाएंगे, हम गवर्नमेंट की नजर में आ गए, तो व्हाट हैपन कि हमें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, उस टैक्स से बचने। यस, तो इसलिए वो अपनी क्या करते हैं, ग्रोथ नहीं कर पाते हैं SMEs। नेक्स्ट है द second biggest reason for lack of growth in SMEs is the unavailability of required finances and support to grow. अब उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते लगाने के लिए। सपोज अगर कोई भी पापड़ मेकिंग कंपनी है, वो पापड़ बनाती है, ठीक है, अगर उसके एक पापड़ पे 5 रुपीज की कॉस्ट आती है मार्केट में, वो उसको 10 का भी बेच रहा है, बट उसमें उसने अगर किसी और 2 बंदों की हेल्प करी तो उसके पास पैसे नहीं है उस प्रॉफिट में इतने ज्यादा कि वो उस बिजनेस को आगे एक्सपेंड और ज्यादा कर सके। ठीक है, a market survey conducted among 15,000 listed and unlisted business from the IT and ITNs, power, textile and agriculture sector show that increasing interest rate for a major hurdle for SMEs to grow. अगर वो चाहते नहीं है कि वो लोन दे, बट जो हमारा इंटरेस्ट रेट है इंडिया के अंदर वो डे बाय डे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहाइंड इंटरेस्ट रेट शॉर्ट रीपेमेंट टाइमलाइंस वन अनदर ह्यूज प्रॉब्लम। While big corporation can avail interest-free loan with a repayment time of 120 days, ऐसा भी होता है कि हमने थोड़े टाइम के लिए लिया और जब हमारे को लगता है कि हमारा वर्क कंप्लीट हो गया तो हम उसको रीपे कर देते हैं, हमने उसको रिम्बर्स कर। बट ये बेनिफिट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए नहीं है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए चीज यूज होती है, स्मॉल स्केल के लिए नहीं होती, उनका बहुत कम टाइम दिया जाता है फॉर द रीपेमेंट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर क्रिपल्ड ड्यू टू द लैक ऑफ रिक्वायर्ड फंडिंग टू ग्रो। अभी भी उनके पास फंडिंग की जो है ना वो बहुत ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन है, दे कैन नॉट रेज फंड्स फ्रॉम एनीवेयर। Other factors include global slowdown, especially due to the unrest in destination countries, drop in national consumer demand in sector like real estate and automobiles, right? Supply chain inefficiencies. कौन से फैक्टर हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एनकरेज नहीं कर रहे हैं? पहला है कि वेस्ट एशियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, ड्रॉप इन नेशनल कंज्यूमर डिमांड इन सेक्टर्स लाइक रियल एस्टेट एंड ऑटोमोबाइल्स। धीरे धीरे इन सब सेक्टर्स में जो है ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डिमांड कम होती रहती है, क्योंकि पहले तो घर में चीजें बन जाती थी और वही यूज होती थी, अब सारी चीजों के लिए मशीन्स आती जा रही है। ठीक है, सप्लाई चेन इनएफिशिएंसीज, insufficient skilled manpower, global and local competition, reducing profit margins are some of the reason why small scale industries have not been able to land the spotlight. अब लेबर की प्रॉब्लम है, लेबर स्किल्ड नहीं है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। आजकल की कंट्री क्या मांगती है? आजकल की कंट्री मांगती है गुड पैकेजिंग, फिनिशिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, दे लैग बिहाइंड दीज थिंग्स, राइट? So they are next है funding opportunities available to SMEs in India. What are the funds available? Understanding the various challenges faced by SMEs, bank and NBFC and the government of India offer several financing opportunities. Some of the funding options include, first is bank loan. Bank loan मिलते हैं उनको, right? फॉरेन बैंक लोन, बाहर की कंट्रीज से भी उनको लोन मिलते हैं। वेंचर कैपिटल, किसी के साथ मर्ज हो जाते हैं, कोई अपना पैसा वहां लगा रहा है और उनकी क्या होंगी, स्किल्स होंगी। जैसे कोई आर्टिस्टिक वर्क है इंडिया का, किसी फॉरेन कंट्री को पसंद आ गया है या किसी बड़े एंटरप्रेन्योर को पसंद आ गया, तो उन्होंने बोला आप ये काम करो, हम अपने ब्रांड के साथ इसको बेचेंगे। एनएफसी लोन्स, नॉन फाइनेंशियल बाय कॉर्पोरेशंस, ये लोन करती है एसएमईज को। डिजिटल लैंडर्स, देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट, ये फ्री लोन्स प्रोवाइड करते हैं डिजिटल लैंडर्स, मींस राइट। So these are all the funding opportunities for all the small scale industries, right? Just mark your attendance class.
Yes. Adil Khan, Ajay, Aman, Amit Negi, Anu, Anshu, Present, ma'am. Anupam, Bhavya, Chirag Adhana, Dipali Singh, Dhruv Singh, Dipanshu, Divya Sharma, Yes, ma'am. Gaurav Malik, Gaurav, Himanshu Raj, Yes, ma'am. Jatin, Jitendra, Karan Yes, ma'am. Yes, Jitendra present. Karan Chandila, Karan Poswal, Kasif Ali, Komal Goyal, Mayank, Mukul Sharma, Pratham Narula, Rohan Punjani, Sandeep Bhardwaj, Sandeep Kumar. Anybody knows about Sandeep Kumar? Shiraz Khan, Shubham Kumar, Simrit Singh, Present, ma'am. Sonam, Present, ma'am. Sunidhi Sharma, Present, ma'am. Sushant Kumar Kabir, तुषार मोंगा, उमेश, विकास सिंह, Present, ma'am. शांत मिश्रा, विनीत शर्मा, विशाल यादव. Present, ma'am. Okay, so that's all for today class. Have a good day. Winding up for today. Okay. Thank you, ma'am. Welcome beta. मैम हाँ जी, मैम मेरी भी लगा दो अटेंडेंस। क्या नाम है आपका? ध्रुव। ध्रुव, आपने क्लास को ज्वाइन नहीं करी बेटा? करी तो दी मैम ज्वाइन। ध्रुव ऐसे कैसे चलेगा? मैम ज्वाइन तो कर रखी है मैंने। ओके, ध्रुव सिंह, राइट? ओके ध्रुव, आई हैव मार्क्ड योर अटेंडेंस. ठीक है, ओके क्लास, ओके मैम। टेक केयर, बाय.